Hi, welcome everyone. This is Suresh Naryal and you are watching Naryal English classes. Today in this video, I am going to explain you a very important topic of your syllabus, and it is about notice writing. So if we talk about notice writing, this question will be at number 3 of your question paper, and it comes under section B for writing skill, and its weightage is 5 marks for HP board students and 4 marks for CBSE students, and its word limit is 50 words. So this is very important question of your syllabus. So are you ready? Let us start. So let us know what is a notice. A notice is a general piece of information for a particular group. तो अगर हमने लार्ज ग्रुप को कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है तो नोटिस राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. So in order to know the concept of notice writing, let us know its format, because it is very important to know the format of notice writing. So let us discuss it. First of all, you will put the name of your school at the top of the notice. After that, you will write notice in capital letter or bold letters, and you will put date to the left hand side of the notice. After that, you will put the heading of your notice, and all these things should be written in capital letters. After that, you will write the body of the notice, and at the bottom of the notice you will put your signature and your designation. And remember one thing, don't forget to put this content inside a box. This is very important. So this was the format of your notice. Let me brief it. नोटिस राइटिंग में सबसे पहला आपका काम होगा, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, उसके बाद नोटिस लिखेंगे आप कैपिटल लेटर में, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालेंगे, उसके बाद आपका हेडिंग आएगा, और उसके बाद जो आप इसका बॉडी लिखेंगे उसमें आप लॉस्ट या फाउंड से स्टार्ट करेंगे. अगर आपकी कोई चीज़ गुम हुई है तो आप लॉस्ट वर्ड लिखेंगे, अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप फाउंड लिखेंगे, जैसे लॉस्ट ए, देन नेम ऑफ द आर्टिकल, उसके बाद उस चीज़ का आप नाम लिखेंगे, उसके बाद कब आपकी चीज़ गुम हुई वो डेट डालेंगे, और डेट के लिए आप प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करेंगे. उसके बाद आप टाइम लिखेंगे, किस समय आपकी चीज़ कोई गुम हुई थी वो टाइम आप डालेंगे, और टाइम के लिए प्रेपोजिशन आप एट यूज़ करेंगे. उसके बाद जिस जगह में आपकी चीज़ गुम हुई है उसका नाम आप मेंशन करेंगे, और उसके लिए आप प्रेपोजिशन इन का यूज़ करेंगे. उसके बाद आप उसका कारण बताएंगे कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम हुई तो उसका क्या कारण रहा, क्या आप उसमें ट्रैवल कर रहे थे, क्या उसमें आप प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, या कोई और रीज़न हो सकता है, उसको आप मेंशन करेंगे. और एक सेंटेंस आप, अगर आपकी कोई चीज़ लॉस्ट हो रही है तो उसमें ज़रूर मेंशन करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. इसको आप वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं. उसके बाद आप लिखेंगे कि आपने किसको कांटेक्ट करना है. अगर आपकी कोई चीज़ गुम हुई है तो वो चीज़ आदमी किस व्यक्ति को देगा, होम टू कांटेक्ट, वो चीज़ आप मेंशन करेंगे. और लास्ट में आप रिवॉर्ड के लिए प्रॉमिस भी करेंगे, जो भी चीज़ आपको देगा उसको आप एक सूटेबल प्राइस देंगे, सूटेबल रिवॉर्ड देंगे, वो चीज़ आपने यहाँ पर ज़रूर मेंशन करनी है. और सबसे नीचे आप अपने सिग्नेचर और अपना डेजिग्नेशन डालेंगे. तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, आपकी क्लास लिखी जाएगी, आपका रोल नंबर लिखा जाएगा, या आप हेड बॉय हैं, या आप हेड गर्ल हैं, मॉनिटर हैं. तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट जो है वो तैयार हो जाता है. तो दिस वाज द फॉर्मेट of your notice writing. Now we will apply this format with the help of a question. So let us discuss it with the help of a question. So here is a question for you. You have dropped your purse somewhere in the school premises. Write a notice for the school notice board requesting the finder to return it to you. You are Arsh Oblique Riba of ABC School Kangra. First of all, you will write the name of your school at the top of the notice. After that, what you will do? Have you remember second step? Yes. Second step is to write notice in capital letters. After that, you will put date. उसके बाद आप डेट लिखेंगे. तो डेट का फॉर्मेट आपका ये रहेगा, इस तरीके से आप डेट लिखेंगे 28 नवंबर 2020. तो इस तरीके से आप डेट लिखेंगे.
नो जो मॉडर्न ट्रेंड है उसमें कॉमा का यूज़ नहीं किया जा रहा है, ना तो आपने यहाँ पर TH लिखना है, जैसे 28th आप लिखेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग। नो यू हैव ड्रॉप्ड योर पर्स, इट मीन्स आपने अपना पर्स जो है वो खो दिया है। यू हैव लॉस्ट योर पर्स इन द स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल के अंदर। तो आपका जो हेडिंग आएगा वो आएगा लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। इसके बाद है बॉडी ऑफ द नोटिस। तो आपको जैसे जो स्टेप्स बताए थे, जैसे लॉस्ट माई पर्स ऑन 24 नवंबर 2020, तो ये आपका आर्टिकल आ गया। लॉस्ट से आपने स्टार्ट करना है। अगर आपको पर्स मिला होता तो आप फाउंड से स्टार्ट करते। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉस्ट माई पर्स ऑन 24 नवंबर 2020 एट 11 AM। तो टाइम के लिए मैंने बताया कि प्रेपोजिशन एट लगाओ, डेट के लिए प्रेपोजिशन ऑन लगाओ और प्लेस के लिए प्रेपोजिशन इन लगाओ। तो कहाँ पर पर्स गुम हुआ है आपका? इट इज़ लॉस्ट इन द स्कूल प्रीमिसेस। तो आपका जो प्लेस आएगा इन द स्कूल प्रीमिसेस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इट कंटेन्स, कि उस पर्स के अंदर क्या क्या था। तो पर्स के अंदर आपका पैसे हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे इसमें लिखा है इट कंटेन्स सम मनी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये आपकी पेट वर्डिंग रहेगी। इसको तो आप नोट कर सकते हैं और इसको आप अपने दिमाग में याद कर लो कि मैंने ये सेंटेंस डालना ही डालना है जब कोई चीज़ मेरी गुम हुई होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी और डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस। तो ये भी सेंटेंस आपका पेट रहेगा। जब आपकी कोई चीज़ लॉस्ट हुई है तो ये सेंटेंस जो है वो आप डालेंगे ही। तो इसको तो आप परमानेंट याद रख लो। और उसके बाद मैंने लिखा था प्रॉमिस रिवार्ड, तो उसमें ये सेंटेंस आप इंक्लूड करेंगे अ गुड कैश रिवार्ड इज़ प्रॉमिस्ड। इट मीन्स कि जो भी लौटाएगा पर्स को उसको पैसे इनाम में दिए जाएंगे। तो ये आपका बॉडी हो गया। और सबसे नीचे मैंने आपको बताया था कि आपने अपने सिग्नेचर और अपना डेजिग्नेशन डालना है। तो इसमें आपका जो नाम है, अगर आप लड़के हैं तो आप आर्श लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप नीचे रीबा लिखेंगे। और आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो आपका क्लास, रोल नंबर और क्लास रहेगी। तो इस तरीके से ये आपका नोटिस हो गया। और सबसे लास्ट में मैंने बताया था कि ये सारा कंटेंट आपने एक बॉक्स में डालना है। तो इसके बाद आप एक बॉक्स लगा देंगे। तो ये आपका बिल्कुल एक सही आंसर होगा और इसके आपको पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में मिलेंगे अगर इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं। सो लेट मी ब्रीफ वंस अगेन। सबसे टॉप पे आपका आ गया स्कूल का नाम और ये लिखेंगे आप कैपिटल लेटर में। उसके बाद आप लिखेंगे नोटिस, क्योंकि आप एक नोटिस लिख रहे हैं तो ये भी आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड में डेट डालनी है और डेट को आपने इस पैटर्न में लिखना है। अब कॉमा नहीं लगता है, आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें हम कॉमा नहीं डालते हैं, TH नहीं लिखते हैं। और उसके बाद आपका हेडिंग आएगा जिसमें आपकी कोई चीज़ गुम हुई है तो आप लॉस्ट 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 करके लिखेंगे। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसलिए लगाया है ताकि अट्रैक्शन बनी रहे। और उसके बाद आपने लॉस्ट से स्टार्ट करना है। उसके बाद आर्टिकल का नाम लिखिए, उसके बाद डेट डालिए, टाइम डालिए, प्लेस डालिए और उस पर्स में क्या था वो चीज़ें लिखिए। और ये पेट सेंटेंस आप लिख दीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी और डिपॉजिट इट विद द प्रिंसिपल ऑफिस और स्कूल ऑफिस। अ गुड कैश रिवार्ड इज़ प्रॉमिस्ड। ये भी आपका पेट सेंटेंस रहेगा, इसको भी परमानेंट आप अपने दिमाग में बिठा लो। और लास्ट में आप अपने सिग्नेचर और अपना नाम और डेजिग्नेशन लिख दो। तो ये आपका एक अच्छा नोटिस फ्रेम हो जाएगा। So this was the concept of notice writing. Now you can easily attempt such type of questions. अब एक चीज़ आपने और नोट करनी है इसमें कि मान लो अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो रही है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। और अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं हेडिंग उसका फाउंड फाउंड फाउंड। अगर मान लो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं लॉस्ट लिखूं या फाउंड लिखूं तो उसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप लॉस्ट एंड फाउंड लिख दें हेडिंग। तो ये आपको अगर कोई चीज़ मिल रही है उसके लिए भी हो जाएगा, अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो रही है उसके लिए भी हो जाएगा। तो ये भी आप चीज़ नोट कर लें दिमाग में, वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं।
बच्चे जो हैं अब वो अक्सर एक मिस्टेक करते हैं नोटिस राइटिंग में, वो फाइंडर की जगह फाउंडर लिख देते हैं। अब इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझिए। फाइंडर का मतलब होता है जिसको चीज़ मिली होती है, और फाउंडर का मतलब होता है जो किसी चीज़ का जन्मदाता होता है। तो आपने नोटिस राइटिंग के वक्त आपने फाइंडर वर्ड का ही यूज़ करना है, आपने फाउंडर नहीं लिखना है। अगर आपने फाउंडर लिख दिया तो ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक मानी जाएगी। सो दिस फिनिशेज योर लेक्चर फॉर नोटिस राइटिंग। आई होप you liked it. So keep watching and sharing my videos. Thank you.